हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश का फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड जो कि जीएल फ्रेंटिस के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये एक फार्मर के बारे में है। फार्मर उसका नाम है लेंचो। लेंचो बहुत ही एक जो बोलते हैं आर्डेंट बिलीवर का ऑफ गॉड है। लेंचो इज़ अ आर्डेंट बिलीवर ऑफ गॉड एंड ही इज़ अ डिलीजेंट फार्मर। ओके, वो क्या करता था, वो गॉड के ऊपर उसका जो विश्वास है बहुत ही विश्वास है। वो विश्वास करता है कि गॉड है और वो इनोसेंट्स को हेल्प करते हैं। और लेंचो ने क्या किया था, लेंचो इस साल अपने जो खेत पर यानी कि जो फील्ड क्रॉप फील्ड पर कॉर्न लगाया था, उसने कॉर्न लगाया था। कॉर्न क्या हुआ, वो एक गुड डाउनपोर यानी कि रेनफॉल पर डिपेंड करता था। वो चाहता था कि अगर एक गुड डाउनपोर हो तो उसका जो कॉर्न क्रॉप है वो बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट देंगे। तो उसने वो होप किया और वो सफल भी हो गया। कुछ देर के बाद रेन हुआ, पर सडनली दैट रेन चेंज्ड इनटू अ स्टॉर्म। ओके, इट द रेन happened with hailstones for an hour. Okay, then after that his whole crop was destroyed. Then with a firm faith towards God, Lencho wrote a letter to God asking him for 100 pesos and describing all the situation that the hailstorm did this and this. Okay, then after that the letter reached the postmaster, and it's a very interesting part here that the postmaster acted as God towards Lencho. He gave him money. Actually, the postmaster was fascinated by the faith of Lencho on God. He then decided to send money to Lencho. For two things, he decided to send money to Lencho. Firstly, for the thing that he was fascinated by the writings of Lencho and the faith of Lencho on God. Second thing, he sent money to Lencho because he felt that if you not send money to Lencho, then the faith of Lencho on God will be second and it may break. Okay, so for this reason he sent money to Lencho. But on the other hand, the postmaster could only arrange 70 pesos because it was very hard to arrange 100 pesos alone. He also shared this message to his friend, and some of his friend and employees, post office employees, also helped in this act. But Lencho, on the other hand, thought that the post office employees are the bunch of crooks, and he told that God should send him money in another way, neither but not by this mail. Okay, not by this letter. And he regarded the post office employees as a bunch of crooks. Okay, so we are going to start this lesson. In this lesson we will learn about and read about this farmer Lencho. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with floods that always promised a good harvest. यहाँ पर ये बताया गया है कि लेंचो का जो घर था वो एक ही घर था एक वैली में, एक ही घर था एक वैली में। मतलब सपोज ये एक वैली है, इसमें और कोई भी घर नहीं है, सिर्फ एक ही घर है लेंचो का। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये क्रेस्ट पर सिचुएटेड है, जो कि क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल होता है। ओके, ये क्रेस्ट पर सिचुएटेड है, ये इस वैली के टॉप पर सिचुएटेड है। सो देन कम्स फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ से कोई भी वो जो रिवर वैली के जरिए से पास करता था, उसके साथ साथ ही जो कॉर्न क्रॉप थे जो कि गुड हार्वेस्ट को प्रॉमिस करते थे, उसको देख सकता था कोई भी। ओके, देन
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। यहाँ पर जो अर्थ के बारे में बताया गया है, अर्थ मतलब लेंचो का जो कॉर्नफील्ड था, ओके, जो कॉर्नफील्ड था, कॉर्न का जो फील्ड था, वो बहुत ही एक गुड डाउनपोर यानी कि गुड रेनफॉल के तलाश में था, ओके। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately means very closely. Okay, meaning of intimately is very closely. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने कुछ नहीं किया था, बस नॉर्थ ईस्ट के तरह देखता रहा। हमेशा वो एक दिन तक वो देखता रहा उस नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन पर, ताकि वो होप करता था रेन आए, ओके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लेंचो का जो वाइफ है यानी कि जो ओमेन था वहाँ पर, उसने बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। इसका मतलब है यहाँ पर रेन होगा, ओके। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि रेन होगा। तो ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाई, यस गॉड विलिंग। इसका मतलब है उसने रिप्लाई किया और बोला कि हाँ, भगवान का मर्जी है तो हमें मिलेगा रेन होगा और हमें पानी मिलेगा। देन आता है the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. Okay, जब तक वो जो woman था वहाँ पर, वो जो अपने बच्चों को जब तक वो बुला नहीं लेती कि आ जाओ डिनर का टाइम हो गया, तब तक वो काम करते रहे। जो ओल्डर मैन्स वे आर वर्किंग इन द फील्ड, तब तक वो फील्ड में काम करते थे और यहाँ पर जो छोटे बच्चे थे वो खेलते थे। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ऐसा ही हुआ जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। मील के वक्त पर यानी कि जो दिन के वक्त पर क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बड़े ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि बड़े रेन के ड्रॉप्स गिरने लगे, आसमान से गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल के जो बिग साइज ऑफ क्लाउड्स थे वो पास आने जैसे लग रहे थे, जैसे कि लग रहे थे कि वो पास आ रहे हों। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर वहाँ का जो एयर था वो फ्रेश था, उसके साथ साथ स्वीट था। द मैन वेंट आउट for no reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. Okay, लेंचो वहाँ पर जो था, लेंचो ने क्या किया, बाहर गया just to have the pleasure of the feeling, just to have the pleasure of the feeling of the rain on his body. वो जो रेन वहाँ पर होता था, वो रेन का जो फीलिंग को अपने बॉडी पर लेकर प्लेजर महसूस करने के लिए वो बाहर गया था। ओके, then and when he returned he exclaimed, and जब वो वहाँ से लौट कर आया उसने बोला कि these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। ओके, ये जो स्काई से गिर रहे हैं ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है। ओके, दीज आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है ये 10 सेंट पीसेस है। एंड द लिटिल वंस आर 5, एंड ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है ये 5 सेंट पीसेस है। ओके, देन ये जो 10 बड़े बड़े 10 सेंट है और ये छोटे छोटे जो है ये 5 है। देन with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its plow. उसने एक satisfied expression से उसके जो कॉर्न फील्ड जो कि फ्लावर से
भरपूर था, उसको बोला कि जैसे कि उसको एक्सप्रेस किया, उसको बोला कि जैसे कि उसका जो कॉर्नफील्ड है लग रहा है कि जो एक रेन के कटन में ढक गया हो, यानी कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्राफ्ट इन ए कॉटन ऑफ रेन। उसने ये एक्सप्रेस किया कि उसका जो कॉर्न क्रॉप था वो ऐसा लग रहा था कि जो शायद जैसे वो रेन के कॉटन पर ढक गए हो। उसके बाद बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। क्या हुआ? अब यह हुआ कि सडनली जो रेन था वो चेंज हो गया, उसके साथ साथ रेन के साथ साथ जो रेन चेंज हो गया उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगा और जो रेन था उसमें हेलस्टोन्स गिरने लगे। ओके, बिगन टू हेलस्टोन्स एंड विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। इसके साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, ये जो था ये न्यू सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल करता था। ये किसने बोला? ये लेंचो ने बोला। ओके, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स। यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जबकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और जो फ्रोजन पल्स होता है बाहर उसको कलेक्ट करते हैं। ऐसा ही लेंचो के जो बच्चे थे उन्होंने भी ऐसा किया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। मतलब लेंचो ने अब बोला कि अब ये थोड़ा थोड़ा बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं है। आई होप इट पासेस क्विकली। उसने बोला कि आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब ये जल्द ही चला जाए। बट इट डज नॉट पास क्विकली, ये इतने जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ओके, ये क्या हुआ, एक ही घंटे लेंचो होप करता था कि ये जल्दी से चला जाए, पर ये नहीं गया। ये जो रेन था हेलस्टोन के साथ ये नहीं गया, एक घंटे के लिए ये कंटिन्यू किया। ये जो हेलस्टोन पूरे गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और जो होल वैली को कवर कर दिया। उसके साथ साथ लेंचो का जो फील्ड था, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। लेंचो का जो फील्ड था वो ऐसा दिखने लगा कि एज इफ द फील्ड इज कवर्ड विद सॉल्ट, क्योंकि जो हेलस्टोन्स था वो लेंचो के कॉर्नफील्ड पर पूरा बिखरा पड़ा था। उसके बाद नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ, जो लीव्स ट्रीज पर जो एक भी पत्ता नहीं रहा, सब इधर बिधर हो गए, डिस्ट्रॉयड। लेंचोस होल कॉर्न क्रॉप फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब क्या हुआ, उसका जो कॉर्न फील्ड था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। उसका जो होप था कि रेन होगा, ऐसा अच्छा होगा, गुड हार्वेस्ट आएगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। हेलस्टोन ने उसका सारा जो हार्डवर्क था उसके साथ जो होप था उसको डिस्ट्रॉय। अब लेंचो का जो सोल था वो फिल्ड हो चुका था सैडनेस से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। उसका जो फ्लावर्स थे पेड़ पर, द फ्लावर्स वर गन फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी प्लांट से चले गए थे। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plough of locusts would have leapt more than this। इससे भी ज़्यादा ये जो एक ग्रुप ऑफ ल्यूकस्ट यानी कि एक टाइप का इंसेक्ट जो कि खेत को नष्ट कर देते हैं, वो लोग भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ते, बाकी रह जाता उन लोगों से, पर ये तो सब डिस्ट्रॉय हो गया। लेंचो ने बहुत ही सैड मूड से अपने बेटों को फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर ये बोला। ओके, उसके बाद द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल जो हेलस्टॉर्म हुआ था उसने कुछ भी छोड़ा नहीं था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, उसने
बोला, लेंचो ने एक्सक्लेम किया, बोला कि इस वर्ष हमको कोई कर नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन। वो रात एक sorrowful नाइट था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। उसने अपने बेटों को बोला कि हमारा जो सारा का सारा परिश्रम था, हार्डवर्क था, कहीं का नहीं रहा। दैट्स नो वन हु कैन हेल्प अस। वो ऐसा बोलता रहा, कोई भी नहीं है हमको जो हेल्प कर सकता है। हमारा जो परिश्रम था, वो सारा हार्डवर्क था, जो वो कहीं का नहीं रहा। और ये रात जो था एक भयानक रात था, sorrowful नाइट था, ऐसा बोलता रहा। एंड उसने लास्ट में बोला कि वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लास्ट में ये भी बोला कि हम लोग दिस ईयर इस वर्ष हंग्री, सारे के सारे वर्ष हंग्री ही रहेंगे, ठीक से खा पी नहीं पाएंगे। सो आज के लिए ये वीडियो इतना तक। आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लूँगा, और आपका अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एट होम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।